do the revision today till Jenkins. ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर आंसर देना है, ठीक है? क्या? यस यस ओके, ठीक है। इंटरेक्टिव रिवीजन रखेंगे ताकि सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। कुछ गलत बोल दोगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ओके, खुल के आंसर दो। यस सर। गलत भी रहा तो को भी टेंशन नहीं, आई विल करेक्ट। ओके ओके, टेल मी what is tell me what are the different ceremonies in Agile? Different ceremonies in Scrum. हेलो, अरे Agile में कौन सी सेरेमनीज होते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव, रिव्यू, डेली मीटिंग, स्प्रिंट प्लानिंग, डेली स्क्रम कॉल, डेली स्क्रम कॉल, रेट्रोस्पेक्टिव, रिव्यू, या ओके। प्लानिंग मतलब क्या? आपके जितने भी नया आपको फीचर ऐड करने हैं उसके लिए आप प्लानिंग करते हो। रेट्रोस्पेक्टिव, 1 सेकेंड, रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में क्या होता है, जो भी आपकी गलतियां हुई है लास्ट स्प्रिंट में, आप वो गलतियों को रिजॉल्व करते हो या फिर उसको डिस्कस करते हो। रिव्यू मीटिंग में जो भी फीचर्स आपने डेवलप किए हैं पूरे स्प्रिंट में उसके रिलेटेड आप डिस्कशन करते हो, राइट? टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड? हेलो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड? और थोड़ा एक शॉर्ट में इलैबोरेट करो। Cloud is means we can access the resources over the internet. अरे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, आप क्या आंसर दे रहे हो? What are the Private different cloud types of cloud? Private, public and hybrid. Private, public and hybrid. Public Public cloud, hybrid and cloud, hybrid. multi cloud. मल्टी क्लाउड। जो क्या आंसर सिंपल पूछ रहा हूँ मैं, आप आंसर दूसरा दे रहे हो। पहले पढ़ो, सुनो आपने क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन देन आंसर, ठीक है? Yes, sir. Now what is the difference between a private cloud and public cloud? So private cloud access only in the organization, and then public cloud connect होते हैं over the internet. क्या? Please repeat your answer. So private cloud is within the organization. We are accessed within the organization. और public? Connect over the internet. अच्छा, तो प्राइवेट क्लाउड को ओवर द इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर सकते? Sir, it accessed by single customer like private and public देखो is ऐसे भूल जाओगे, आगे तो बढ़ गए आप, पिछला वाला रिवाइज कौन करेगा? Sir, public cloud access For public cloud, we are having multiple in same infrastructure, and for a private cloud, we are having own infrastructure. Private cloud is a cloud computing platform which is used by only a single entity or a single customer. Okay, it is accessed over the internet only. तो उसका क्लाइंट क्या है? सिर्फ सिंगल कस्टमर है। It is also called as on premises. पर in case of public cloud, it is for multiple user, multiple customers, multiple tenants. वो भी ओवर द इंटरनेट यूज होता है। उस केस में सिर्फ आपके पास क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है, राइट? AWS कौन सा क्लाउड है? पब्लिक क्लाउड। AWS, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जोन एंड अ रीजन? Region is a geographical area and zones are present inside the region. Zone is a data center. Zone is a data center or cluster of that center, and region is geographical location which hardware located. AWS hardware is located in which. जोन में क्या होता है? So data centers are located. Data centers. We have a cluster of Located in different locations. A region is nothing but a geographical location, and inside a region there are multiple zones.
In each zone, there is a data center or cluster of data center. Each zone has its own power supply unit. Yeah, all these zones are separated miles apart, right, and completely isolated from each other. बताओ कि how many region specific services, how many global services in AWS. जो आपने पढ़े उसमें से कौन से रीजन स्पेसिफिक है, कौन से ग्लोबल है. हेलो, We have the global services are only two services, S3 and SNS, and all other services are region specific services. what SNS is global service? Yes. SNS global service है. Global service. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. और कौन सी ग्लोबल सर्विस है फिर? IAM is also. IAM. हम्म, IAM. ओके. CloudFront. क्लाउड फ्रंट क्या है? CloudFront what? CloudFront what? करके बताओ ना, आप क्या बोल रहे हो? हेलो, कैन यू रिपीट मुझे, तो मेरा कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे. Sir, CloudFront, IAM, S3 bucket are global services. CloudFront, IAM, and Route 52. क्लाउड फ्रंट, IAM, Route 52. क्लाउड फ्रंट तो ग्लोबल सर्विस. एसएनएस किसी ने तो बोला ग्लोबल सर्विस है और सब लोग हाँ बोल रहे हो. एसएनएस ग्लोबल सर्विस है क्या? No, sir. फिर क्या है एसएनएस? रीजन स्पेसिफिक है. Region specific. sir. S3 IAM S3 IAM ये क्या and है? ग्लोबल है. क्लाउड फ्रंट क्या है? व्हाट इज क्लाउड फ्रंट? अगेन इट इज अ ग्लोबल सर्विस, राइट? Yes. क्या क्लाउड फ्रंट इज व्हाट? Global. डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो, वो ग्लोबल सर्विस है. क्लाउड ट्रेल क्या है? व्हाट इज क्लाउड ट्रेल? विच टाइप ऑफ सर्विस इज क्लाउड ट्रेल? it is also global, sir. Global. क्लाउड ट्रेल इज अ ग्लोबल सर्विस. चेक करो. Yes, cloud trail is a region specific global service. इट इज अ रीजन स्पेसिफिक सर्विस. Region specific, sir. उसमें ट्रेल आप बना सकते हो पूरे अकाउंट के लिए, पर वो रीजन स्पेसिफिक है. क्लाउड हर एक रीजन में अलग से वो लॉक करता है. या फिर उसमें एक कॉमन ट्रेल भी बना सकते हो जिसमें आप सारे रीजन्स में जो आपका यूजर एक्टिविटी हो रहा है वो आप ये कर सकते हो. बेसिकली इसका जो स्टोरेज होगा वो उसी रीजन में होगा. फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में बनाता हूँ, वो सब कुछ ट्रैक कर लेगा, पर वो स्टोर कहाँ पे करेगा? क्लाउड वॉच में करेगा. तो जो रीजन में आपने बनाया उसी रीजन के क्लाउड वॉच में वो स्टोर करेगा. क्लाउड वॉच क्या है? विच टाइप ऑफ सर्विस क्लाउड वॉच? हेलो, Region specific. Region specific. Region specific. रीजन. ठीक है, S3 के बारे में बताओ. व्हाट इज S3? कैसे सर्विस है वो? Global service. Global service. Global service. Yes, और simple S3 storage. bucket क्या है? S3 is a simple storage service. अरे ग्लोबल है क्या या रीजन स्पेसिफिक है? Global. Global services, sir. This is a global Yeah, it's a service. ग्लोबल सर्विस, पर उसका बकेट क्या है? Region specific. Region specific. बकेट रीजन में बनता है उसका. क्यों? तो फायदा. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर इन S3? क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर S3 का? In distributed architecture, the data is copied to all the availability zone in that region. Oh, sorry, in that region. Okay. Yes. Yeah, in that region. So data is copied in multiple availability zone. Greater than equal to 3 है वो. क्या है? Greater than equal to 3. Yeah, greater than equal to 3 availability zones में वो copy होता है. Okay, so let's talk about EC2. Tell me, what are the different ways to launch EC2 instances?
Yeah. What are the different ways to launch EC2 instances? On demand spot instances, Instances. reserved instances, Dedicated instance. Dedicated instances के dedicated host. Dedicated host. Okay, tell me Available what is the sir difference होते हैं. between on-demand, spot and reserved? Hello. काय माहिती बंद झालं मी मोबाईलवर कनेक्ट केले करा काय Yes, sir. लवकर So नाही. in on-demand instance type, user don't give like user don't give AWS commitment. In on demand, user don't give any commitment. ऑनलाईन दाखवतोय इथं हा कनेक्टेड आहे. Yeah. Whenever In we case need of on-demand, there is no Connected I am- commitment given by my meeting user चालेल, to करतो. AWS. He can launch and terminate whenever he wants, right? yes. Yes, sir. उसमें बिलिंग कैसा होगा उसका? जितना यूज करोगे उसके बिलिंग मिलेगा, कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, राइट? नेक्स्ट स्पॉट क्या होता है? In spot instance, AWS do not give any commitment to the user. ये एक पॉइंट थोड़ी है उसमें यार. इज दिस द ओनली पॉइंट? ये तो एक प्रॉपर एक छोटी सी बात है उसमें. If AWS required the free space, he will retake that. देखो सेंटेंस अगेन सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए? या हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? सेंटेंस फॉर्मेशन सही करो यार, क्या बोल रहे हो आप? आप मुझे शॉर्टकट में जवाब दे रहे हो. आप इंटरव्यूअर को ऐसे थोड़ी जवाब दोगे ना, वो भगा देगा उधर से. in spot instances, AWS don't give commitment to user, and if any user pays higher than you, then AWS takes your instance back and give instance to that user. देखो आप बोल रहे हो सही है, मैं नहीं बोल रहा कि आपने गलत जवाब दिया है. आप ये मैं बोल ही नहीं रहा. देखो इन स्पॉट AWS has some kind of AWS has some free capacity. You can get the instances from that free capacity with some discount. So what we have to do? We have to do bidding. क्या करना पड़ता है हमें उधर? बिडिंग. हम क्या करते हैं? बिडिंग करते हैं and we get the instance. Now once we have the instance, AWS does not give any kind of commitment to us. Okay, and it can terminate or the instance whenever it wants. It will give a 5-minute warning. So whenever it needs the free space back, what it will do? It will terminate और क्या करता है? कुछ तो और करता है वो. नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन देगा. एक तो स्लीप मोड में हाइबरनेट में डाल देगा, तो टर्मिनेट कर देगा आपका इंस्टेंस, बंद करके रखेगा. या तो बताओ रिजर्व्ड इंस्टेंस क्या होते हैं? Reserved instances are instances that you can reserve for a specific period of time. Probably, I think for 1 to 3 years, you can reserve that instance on your क्या name. फायदा है उसमें? कैसे पेमेंट मोड है? 75% discount in a payment. Amazon. Upfront, partial front, no upfront. तो जैसे आपका पेमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंट मिलेगा. या इट डिपेंड्स ऑन द पेमेंट कि आप कैसे पेमेंट करते हो, राइट? ठीक है. अभी आपके कंपनी में अगर मैं आपको सवाल पूछता हूँ, इन योर कंपनी व्हाट टाइप ऑफ इंस्टेंस डू यू लॉन्च और हाउ डू यू लॉन्च योर इंस्टेंस, व्हाट विल बी योर आंसर? आपके कंपनी में आप कैसे लॉन्च करते हो इंस्टेंसेस, उसके बारे में बताओ. मोस्टली वी यूज रिजर्व इंस्टेंस एंड फॉर ऑटो स्केलिंग. देखो whenever you are working in an organization, we always use a mixture. क्या कुछ लोग कभी पे हम स्पॉट यूज करेंगे, कभी कभी हम क्या यूज करेंगे? रिजर्व यूज करेंगे, कहीं पे हम क्या यूज करेंगे? ऑन डिमांड. ठीक है. ऑटो स्केलिंग वगैरह रहेगा, वहां पे यूज करेंगे स्पॉट इंस्टेंसेस. आपके प्रोजेक्ट में आपके क्लाइंट ने बताया 2 साल के लिए ये इंस्टेंसेस हमें लगेंगे, आप क्या यूज करोगे? रिजर्व. और कभी पीओसी वगैरह करना शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए, एक ऑन डिमांड इंस्टेंस में आप
POC करके उसको बंद कर दोगे। यस, हमेशा मिक्सचर यूज होता है। क्या यूज होता है? Mixture. Mixture of EC2 instance. Is it clear? Hello? Yes, sir. ठीक है? Okay. Now, tell me few ideas where I can save cost in AWS. कुछ आइडियाज दो मुझे कि मैं कैसे सॉफ्ट सेव कर सकूं कॉस्ट। By putting the CloudWatch and all the log services, monitoring services on, I will review the account and I will minimize my cost. क्या? समझा नहीं क्या? Sir, to reduce cost of our organization, we can increase the use of spot instances while we require an for low traffic, we can use auto scaling to monitor our EC2 instance and save our. देखो आपका स्टेटमेंट समझ रहे हार्दिक, फॉर लो ट्रैफिक वी विल यूज ऑटो स्केलिंग। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Yes, यस, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो जब यू आर गिविंग आंसर्स, आप मॉक नहीं करते हो क्या सब लोग? हेलो गाइस, टेल मी जेन्युइनली, नहीं करते तो नहीं करते हो, करते हो तो करते हो क्या? ऐसे आंसर क्यों आ रहे हैं? देखो आंसर में यही नहीं है। आप स्टेटमेंट जब बोल रहे हो तो थोड़ा समझ अरे बघ ना यार, काहीतरी मीटिंग चालू आहे यार. नीट चालू आहे राव, मला तेच काय कळत नाही काय होते नेमकी. तुमचा यूज होत नाही. नो इंटरनेट सांगते डायरेक्टली. नो इंटरनेट. हा, हेलो, मला तर कनेक्शन ऑनलाइन दाखवते. ते बघा काय क्या प्रॉब्लम है? इंग्लिश नहीं आता आपको? व्हाट इज द इश्यू विथ इंग्लिश? आई डोंट अंडरस्टैंड। तो बंद करून चालू करा ना एकदा. बरोबर. क्या आपकी एजुकेशन पूरी इंग्लिश में हुई है ना? मोस्ट ऑफ यूर इंजीनियर्स राइट? BSc इंजीनियरिंग सबने की है राइट? Yes, sir. हेलो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? Yes, sir. आती है ना। हिंदी मराठी में थोड़ी आपने ये किया रहेगा इंजीनियरिंग, आपने इंग्लिश में ही किया है। उसमें वाइवाज वगैरह रहते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? इंग्लिश ये है, इंग्लिश में नहीं बोलने का। अब देखो, इसलिए हम यहाँ पे इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश में यहाँ पे सिखाने लगूं किसी को कुछ नहीं समझेगा, इसलिए मुझे हिंदी या मराठी यूज करना पड़ता है कभी कभी। या इंग्लिश में इसलिए मैं पढ़ाता नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप नहीं करो इंग्लिश में प्रैक्टिस। तो भी आई ट्राई टू टेल यू, आई ट्राई टू क्या कैसे कह सकते हैं उसको, यूज एज लेस एज पॉसिबल। इंग्लिश जितना कम हो सकते मैं उतना कम यूज करता हूँ, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। You cannot compromise on communication skills. You have to have a basic communication. I'm not telling मैं भी अच्छी नहीं आती एकदम मैं भी एकदम फ्लुएंट नहीं हूँ, बट जितना आता है, जितना मेरी बात रख सकता हूँ उतना मैं रख सकता हूँ। आपको उसी में प्रॉब्लम आ रहा है, राइट? हेलो, Yes, sir. yeah, tell me what are the different EBS volumes, different types of EBS volumes, and which volume do you use? General purpose provision IOPS throughput optimize memory optimize One second, memory optimize, Saurabh. or storage. Saurabh, EC2 type memory optimize is EC2 instance का. मैंने क्या बोला है? EBS वॉल्यूम पूछा है कि नहीं? देखो कहाँ पे जा रहे हो। चलो, what are the different policies of auto scaling? target tracking policy, टार्गेट ट्रॅकिंग. There are basically two types of policy, manual and dynamic.
In dynamic, there are four types, five types: target tracking, simple scaling, step scaling, schedule tracking, and schedule scaling, and Predictive. predictive. Target tracking policy, simple scaling policy, step scaling policy, predictive scaling policy, and schedule scaling policy. Right? Okay. Now, what is the difference between target tracking and simple scaling? Hmm? What do you understand? What is the main difference between your target tracking policy and simple scaling policy? Yeah. In target Yes. tracking, we set minimum and maximum value and desired value. But in simple Wow. tracking, संदीप नाही. मिनिमम मॅक्झिमम तर हे नॉर्मल ऑटो स्क्रीनला टाकतो लावतो आपण yes, yes, थोडी yes, पॉलिसी मध्ये सगळं सेट करतो वी ओनली सेट द थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू yes, threshold value, sir. right in case of target tracking policy we only set a single threshold value and the alarms high alarm and low alarm is automatically created Automatically and the created. policy makes sure that your value the CPU utilization value is up to 60%. 60% तो 60 तक की जाएगा ऊपर ज्यादा जाएगा तो ट्रिगर होगा और उसके एवरेज में कम आया तो भी ट्रिगर होगा आपका अलार्म और अकॉर्डिंगली स्केल अप एंड स्केल अप वो ऑटोमेटिकली कर लेगा बट इन केस ऑफ सिग्नल स्केलिंग पॉलिसी आप अलार्म्स भी खुद ही बनाते हो आप अप कितना हाई है कितना लो है सीपीयू यूटिलाइजेशन वो खुद आप मैन्युअली डालते हो और अलार्म्स भी मैन्युअली बनाते हो समझ रहे हो क्या Yes, sir. Yes. ठीक है बताओ एक सबसे पॉपुलर क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर्स Application load balancer, Application network load load balancer balancer, and network load balancer. Network load balancer. what is the difference what is the difference Application load balancer, it is header specific, and network load balancer, when we use the traffic having sudden peak or sudden zigzag type of traffic. Application load balancer was from What? HTTP and HTTPS. what is zigzag Sudden Application sir, load application balancer load is balancer- mainly used for mobile and web applications, Sir, whereas the network load balancer used for web applications. That means if your what you can say spiky load is there, then you can use network load balancer. sir, एप्लीकेशन आप देखो अब ये बता ही नहीं रहे बेसिक ही बता नहीं sir, रहे application load load balancer balancer. supports Application load supports balancer works on HTTP HTTPS protocol HTTPS. network supports TCP TLS and TCP. Application load balancer. सेवेंथ लेयर पे है वो कौन से लेयर पे चौथे लेयर पे है Fourth layer पर. ठीक है हाँ, आपका seventh layer एप्लीकेशन पर. लोड बैलेंसर reads the HTTP headers or it can identify HTTP headers whereas network load balancer cannot right yeah Yes. आपके जब वेब एप्लीकेशंस पे ये काम करता है नेटवर्क लोड बैलेंसर जब हाई नेटवर्क के सर्जेस होते हैं या फिर स्पाइकी ट्रैफिक रहता है तब आप नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करते हो करेक्ट है कि नहीं यस Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है चलो मुझे बताओ कि मैं ना अपने AWS में कौन से दो फायरवॉल यूज कर सकता हूँ और वो दोनों फायरवॉल का पर्पस क्या है Security group and Security group What and is the different NACL. firewall solutions in AWS and what is their use? security is used for EC2 instance attached to it is EC2 instance, and it we can allow inbound traffic to EC2 instance, and outbound traffic is already set, and network access control list is attached to subnet, where we have to allow and deny traffic, incoming and क्या outgoing बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा याकूब you're trying your level best I admire that but still flow नहीं आ रहा है ना आपके आंसर में be honest guys flow आ रहा है क्या आंसर में नहीं आ रहा है right रोहित you want to try रोहित आपका आवाज नहीं आ रहा
Okay, Chetan, you want to try? चलो मैं बीच में से किसी को अब मैंने किसी को बीच में से Security क्वेश्चन group. A security group is the first layer of firewall for EC2 instance, but NSCL acts as the first layer of firewall for VPC, and it works on VPC the या subnet. One second again. Correct your statement. VPC या subnet. so VPC. क्या बात कर रहे Sir, it is a subnet. सबनेट के लिए है ना भाई. It's stateless and stateful. The difference between the security कौन group सा and स्टेटलेस है कौन सा स्टेटफुल है अगेन कंप्लीट so NSCL is stateless and security group is stateful. ओके ठीक है. चलो अब मैं क्या करता हूँ बीच में से मुझे 3-4 लोग ही जवाब दे रहे. मैं अब किसी को बीच में से पूछता हूँ. ठीक है. किसी का मैं नाम दूंगा. अलर्ट रहो. ठीक है. Yes, sir. हेलो. Yes, ठीक sir. है. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है. ओके तेजस शेटे. Hello. तेजस. Yes, sir. तेजस प्लीज टेल मी व्हाट इज अ ब्लॉक स्टोरेज और उसके बारे में Sir, थोड़ी डिटेल बताओ. So ABS is a elastic block storage used to store the persistent data. So we can install the OS in it, and it stores the data into the random. That is, so we can access it over the storage area network. That is storage area technology, SAN technology. अरे क्या बोल रहे हो आपने. क्या मुझे पता परसिस्टेंट स्टोरेज है तो इसलिए मैं ओएस डाल सकता हूँ उस पे. या So we can store a data into the random format, and we can access it through SAN मैंने ऐसे technology, कभी that is बोला ही नहीं storage है. access network. स्टोरेज एक्सेस नेटवर्क. गाइस ये सही है क्या आंसर. It is a table drive. Sir, it is a table storage. That means OS can be installed in it. It is a persistent storage. That means your data will not get lost if your instance get terminated also, and the data gets stored in. Sir, may I try? Sir, no. वेट 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 यादव आपको पता है. डोंट वरी. देखो ध्यान कैसे. Infrequent class. Infrequent class. नो नहीं. ओके. Should I try? या खुशी. या खुशी try. Standard है. One zone है. Glacier deep archive. Yes, yes. ओके तो ठीक है. एक काम करते हैं अपन. दिनेश मालेकर. हेलो दिनेश. हेलो. Yes, sir. ठीक है. मुझे बताओ दिनेश कौन सा सबसे सस्ता है. कौन सा स्टोरेज क्लास इन केस ऑफ स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे सस्ता कौन सा है. Sir, Glacier Deep Archive is cheapest as compared to storage. उसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ. Sorry, sir. मैंने क्या पूछा अभी कि और क्यों सस्ता है वो. व्हाई इट इज चीप एंड व्हाट कैन आई पुट इन इट. Because we have to access this data between 3 or 4 months. ठीक है. चलो बाकी देखो बाकी लोग 3 and 4 months थोड़ी रहेगा. ठीक है. टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस. ओके बताओ रोहित यादव. एक एक करके बताओ उसके बारे में डिटेल बताओ. रोहित यादव. हेलो.
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Sir, storage ठीक है. class. हाँ बताओ एक एक करके सारे स्टोरेज क्लास. Sir, there is a standard infrequent storage classes. Then there, after third one, there is a one zone infrequent glacier deep archive, and the most expensive the storage is the I think so. Standard frequent is the most expensive, and the retrieval is zero over there. Retrieval cost, and the most cheapest is the glacier deep archive, and the most expensive for the retrieval is the glacier deep archive. Okay, good. ठीक है. Now let's talk about IAM. What are the different components in IAM? यार सबको पूछ रहा हूँ, तो वो एक एक का नाम देके बहुत टाइम जा रहा है. What are the Role different and components policy. of IAM? I am user, I am group, and roles, and policies. I am user, I am role, I am group, I am permissions, or I am policies. What is the difference between a policy and a permission? बताओ. Sir, we set Sir, हिंदी में बताओ सर. Multiple permissions. permission to the we give permission to the policies, and policies are Exactly. inside the users. Exactly. A policy consists of multiple permissions. Each policy can be attached to multiple users. So what are the different types of policies in IAM? There are three types of AWS manage policies, user manage policies, and inline policy. Okay. Now अब क्या हो गया है ना, मुझे एक इशू आया है कि मुझे चेक करना है कि वो पॉलिसी में क्या क्या कर सकता हूँ मैं. मुझे पता नहीं है, उसमें कुछ तो लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो पॉलिसी में क्या कर सकता हूँ मैं. तो मैं क्या करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा वो पॉलिसी क्या कर सकती है? Sir, we check in simulation, sir. We can Check in simulation. we can run the simulation. What we can do, we can run the simulation and check accordingly. Correct? Yes, sir. Now, what is the difference between a inline policy and a customer managed policy? And where can I implement inline policy? कहाँ पे मैं inline policy का use कर सकता हूँ? Inline policy belongs to a particular activity which is not means which is different activity means. ना ना नहीं समझा मैं. Other than Usable. Inline policy is used to one-to-one interconnection. One-to-one relationship between the entity and the policy, and it is useful for the user group and roles. And customer policy, which is created by us and which is also attached to multiple user groups and roles in AWS account. Inline policy is only for the particular user. When that user is deleted from the group, that policy is automatically deleted with that user. And AWS managed policy is for all the users. It apply to all the users, but inline policies particularly apply for particular that user for particular that activity. मुझे use case बताओ कि मैं कब किस situation में inline policy use करूँगा. Okay, so one-to-one connection. so in case if you want to run any particular or any sticky activity for any particular user, then we can apply inline policy for that user, so that it. Okay, let's say a scenario applies- when you want that- to have that- only a single user to have a permission, and that permission by mistake should not get applied to some other user or a group. Then only I will use inline policies, right? And it is non-reusable, and customer is reusable. Yeah. Okay. Now, tell me the ways to create policies. What are the different ways to create a policy? The user to service. With the help there are of two ways of creating Bolo. policies. First one is Visual Editor. With the help of Visual Editor, we can copy AWS managed policy and edit in it, and apply whatever our requirement is there. With the make changes as of our need, and create our own policies with the help of Visual Editor in JSON format. Okay. ठीक है. JSON से बना सकते हो और किससे बना सकते हो आप? Visual editor. Visual editors.
Okay, now let's talk about CloudFront. What do you understand by CloudFront, and what is the difference between a regional edge cache and edge location? Yeah. CloudFront is basically a content delivery network in which there is a edge locations and regional caches. Means in edge locations where the request from the different users are stored. Means data is stored in that, and after that the request will follow the edge locations, and the data will automatically stored in the cache. Uh, that's it. What can you please repeat? क्या बोला आपने? Okay, tell me what is TTL? What do you understand by TTL? Time to live. क्या होता है वो? Sir, object is stored in the cache system for that particular time. For example, in each cache there is a 24 hours time period. That is a TTL. That is a default time, right? It is a default time. It is stored because it is a default time, right? We can answer. Before it is deleted or it is replaced. Yeah, default time. Exactly, it's a default time. Minimum, maximum और default TTL क्या है? आपने default बता दिया. Minimum, maximum कितना है? 1 second. Minimum 0 seconds. Maximum 1 year. 1 second. And maximum 1 year is there. Anyway, 1 second. What happens if we keep? What happens if I keep it 0? क्या होगा? It will not store any that. So it is कैशे होगा ही नहीं क्या? कैशे होगा क्या? Cache will not get. कैसे होगा ये सर? कैशे होगा नहीं. Okay, let's talk about monitoring. What is the difference between CloudWatch monitoring and CloudTrail monitoring? CloudWatch monitors resources like EC2, AWS VPC, services and AWS activities. whereby CloudWatch monitors AW resources like EC2, VPC, S3, and CloudTrail monitors the AWS account. Who did what on AWS, like. Okay. Now, what is the difference between CloudWatch event and CloudTrail event? Yeah. Any activity in AWS resources that count CloudWatch events, and any activity made by user, roles, and API, that's counter Okay. CloudTrail events. What are the different types of cloud trails? कितने there टाइप are के two क्लाउड ट्रेल है और क्या क्या उसका पर्पस है? कोई बता सकता है? 2 types of CloudTrail, multi-region and one region. Sir. ओके, और क्लाउड ट्रेल इवेंट्स कितने टाइप के हैं? क्या क्या पर्पस है उसका? There are 3 types of managerial, CloudTrail. data, and insight. Insight event. Insight event. Data event, management event, data insight, data event or insight event. Now, what is the difference between all the three one? In an insight event, the unusual activity will be captured, I think, and detail check. And in a managerial event, a termination, stop, instances stop. If we terminate an instance, then it will be checked in a managerial event. डेटा इवेंट में क्या होगा? इनसाइट एक्टिविटी मतलब क्या होगा? Inside there is an unusual activity will be there. Then we can find out in the insight event. Insight events. Okay, let's talk about DevOps. Tell me, why do we use Git? Git is a distributed version control system where what you can say, where the different versions of code are available. Or maintaining the number of versions of code with history. Sir. Okay. Tell me what is the difference between working directory, staging area, and local repository? Working area is a location where we can create and modify the files. And edit the files in Working area. Yeah.
Okay, what is staging? Staging area is a final file for In staging area, we can double check, cross review check, the or file. double check our Review the codes file. before commit to the local repository. And what is local repository? Where we can commit our code, final code. What do you understand by commit? What is a commit? Commit It is is a a process to sending file from working area to local repository. Working area के staging? No, staging area. Staging area. Commit means final changes in that particular commit is a 14 process. unit ID number. Commit is a process by sending Okay. file Okay. staging. Tell me to- what is the difference between a Git branch and a tag? Yeah. Git branch और Git tag में क्या difference है? By using git And branch it is command, we can independent. create multiple branches. And क्या पूछ रहा हूँ मैं? आप क्या बोल रहे हो? मैंने पूछा what do you understand? What is the difference between Git branch and tag? आप बोल रहे हो with the help of Git branch we can create different branches. तो branch क्या है वही पूछ रहा हूँ मैं. Independent line of code. Yes, Independent line of development. independent line of development. Yes. और गिट टैग क्या है? आपको कोई भी कमिट को टैग दे सकते हो या फिर एक नेम दे सकते हो. Important commit. Yeah, There is in an case there is an important commit, we can just give a name to that. It is called as a git tag. Git tag. Okay, yes, Yeah, yes, or sir. or with the help of basis of git tag, we can push it to repository. Yeah, I can release the code in GitHub, right? Yes, sir. Right, sir. Okay, tell me, can you tell me a command where I can delete a commit completely? Sir, git reset, sir. There are three options in git reset. Mix, soft and hard. In case of mix, the commit bring back to local, workspace. In case of soft, commit revert to staging area. In case of hard, commit is permanently deleted. Okay. Okay. Now, what is a pull request? What is the difference between git pull and git pull request? Git pull means we can एक ही just को आता है क्या? एक दो लोग को ही आता है क्या? दूसरा बताओ थाम दिनेश. बाकी लोग बताओ. By using git Git pull command. remote repository to our local repository. Okay. और pull request क्या करता है? If we want to merge in two branches, then we use Git pull is used to merge the contents in between two branches present in remote repository after approval of the reviewer. Okay, good. ठीक है. Tell me, give me a command to check out a particular branch on a Linux machine. Git checkout. Git checkout branch. branch. Nah, no. Git branch. नहीं मुझे सर चेकआउट क्लोन करना है. सॉरी क्लोन आई एम सॉरी क्लोन करना है. एक पर्टिकुलर ब्रांच क्लोन करनी है. क्या कमांड है? Git clone. Git clone and URL hyphen d and branch name. Git clone URL. Exactly. Okay. How do I forcefully delete a branch? Git hyphen D. Git hyphen D, capital D. Git hyphen D for forcefully. Okay. And commit ID. Okay. मुझे बताओ कि can I have multiple repositories configured in my local repository? Yes, sir. Means multiple remote repositories configured in my local repository, and how? What is the command? We set the multiple origin for that. We will keep the How? origin वही one, पूछ रहा हूँ, origin कैसे? We connect local repository to multiple remote repository with the help of creating multiple origin. Suppose we have two repositories. For that we have giving naming convention like origin 1 and origin 2. For that, if you want to add git remote add origin, that is first repository, and if you want to add another repository, then git remote add origin 2.
Like that way, we can manage multiple origin ओके in our ठीक है Git. ओके ठीक है मुझे बताओ कि अब मैंने एक फोल्डर में git init कर दिया है आई हैव डन git init सो अब मुझे वापस रिवर्ट करना है आई डोंट वांट टू इट टू बी अ git folder so what is the next step Okay, we have to delete .git folder. We have to delete -rf.git. yeah so what are the different contents in .git folder what does .git folder signify yeah Initialize empty repository. Initialize the local repository. Empty repository. Empty. okay ठीक है tell me what is the difference between a local Maven repository and a central Maven repository Local Maven repository where we can store our dependency while downloading. क्या क्या सर लोकल रिपोजिटरी में जो भी डिपेंडेंसी अपन मतलब सॉफ्टवेयर कोई भी डाउनलोड करते हैं वहाँ पे लोकल रिपोजिटरी में हमारी डिपेंडेंसी डाउनलोड होती है लोकली M2 फोल्डर में राइट ओके तो मुझे ये जो M2 फोल्डर का लोकेशन है वो चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा आइडिया किसी को कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करना पड़ेगा राइट कौन सी है कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैमन की pom.xml. No, नहीं pom.xml तो फाइल है उसके तो डेवलपमेंट होता है सर्वर XML सर्वर XML settings XML server.xml. server.xml टॉमकैट की फाइल है settings.xml जो होती है वो मैवन की होती है आप मैवन जब इंस्टॉल करोगे ना उसके यहाँ पे आप क्या करो कॉन्फ में जाओ उधर आपको दिखेगी settings.xml फाइल yes Yes, sir. ठीक है मुझे बताओ व्हाट इज अ डिपेंडेंसी Predefined code written by any other developer which we want to use in our product. dependency is nothing but a open source jar which is available in Maven Central open source jar okay yeah तो एक तो ओपन सोर्स डिपेंडेंसी होती है तो ओपन सोर्स जार फाइल है जो आपकी Maven में होती है ओके what is the difference between a jar var and EAR jar is Java archive and var is web archive and ER is enterprise archive. War is used for deploying the web server, web application. Jar is used for small class project, class application. okay ER is about enterprise archive for enterprise applications ठीक है for high level of business logic implementation ठीक है let's talk about Jenkins tell me what is Jenkins Jenkins is a self-contained open source automation tool and most important Java applications to allow continuous integration and continuous delivery. Jenkins is an automation tool. Jenkins is the heart of DevOps. Jenkins is an automation tools that provides continuous integrations and deployments using the pipelines. okay now what is the basic difference between a pipeline and a freestyle job If you want to perform the one by one. Sir, in pipeline you can do multiple jobs and you can create multiple jobs, but in freestyle you can create only one job. You can build only one job. pipeline में आप job कहाँ बनाते हो एक ही तो job है Activity perform one by one. If you want to perform the activity one by one, then we use the Jenkins pipeline. okay tell me how can I take backup of Jenkins Repeat the question. how can I take backup of Jenkins So you can copy the repository of the workplace to some other location. which repository there is no repository The repository of our workspace. ऐसा कुछ नहीं होता है
how to take backup of Jenkins. So we will make a zip file of Jenkins home file. Exactly, very good. Then share with S3 or like like volume. जो आपका जेनकिंस होम है, जो आपका जेनकिंस होम है उसको आप उसके अंदर पूरा कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप उसका बैकअप ले सकते हो. इज इट क्लियर? ठीक है. और प्लगइन भी आता है बैकअप का. देयर इज अ प्री डिफाइंड प्लगइन, यू चेक इट आउट. बैकअप का एक प्लगइन भी होगा एंड ट्राई इट आउट एज वेल. यस, कैन यस, हेलो, यस सर. या देखो सिर्फ 76 लोग प्रेजेंट है, कैसे होगा? 76 लोग ही प्रेजेंट है. सर वो कोई फोल्डर का गिट इनिट मैंने कर दिया है, लेकिन उसको वहां से गिट इनिट से हटाना है, तो क्या कमांड बोला सर आपने? रिमूव कर दो डॉट गिट फाइल. डॉट गिट फाइल रिमूव करना है. ओके सर. यस. सर Okay. जैसे हम लोग का जेनकिंस पोर्ट नंबर 8080 पे रन करता है. ओके, जैसे उसका अगर पोर्ट नंबर चेंज करना हो तो टॉमकैट का पोर्ट नंबर चेंज करो. ओके. आप इसका भी कर सकते हो, सर्विस कमांड से भी चेंज कर सकते हो. जेनकिंस जिस फोल्डर इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी वहां पे पोर्ट नंबर रहेगा config.xml में, वो भी आप चेंज कर सकते हो. आप अगर एज ए सर्विस इंस्टॉल कर रहे हो तो, और वापस सर्विस स्टार्ट करो. सर और एक मुझे क्वेश्चन ऐसा पूछना था, अगर मेरे मल्टीपल EC2 लॉन्च है, ऑलरेडी वर्किंग में है, और कोई मशीन में मेरे वायरस डिटेक्ट हो चुका है, ठीक है, तो मैं वो कैसे फाउंड करूंगा कि वो मतलब कैसा वायरस है, कहाँ से आ गया, और उसके बाद उसका एक्शन क्या रहेगा? मतलब वो टर्मिनेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? मतलब सबसे पहले तो आप वायरस कैसे आएगा उसमें, वो लिनक्स मशीन है आपकी, लिनक्स मशीन में ऐसा वायरस आता नहीं है. और एंटीवायरस भी अवेलेबल होता है लिनक्स के केस में. ओके सर. जैसे आपके विंडोज में एंटीवायरस होता है, लिनक्स पे भी आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हो. कर सकते हैं. ओके सर. अगर कोई मालवेयर अगर वो उसमें फाउंड हो जाए, मतलब आ सकता है, ऐसा कुछ रहता है? नहीं. नहीं. ओके सर. सर एक और क्वेश्चन था. एक प्रैक्टिकल किया था, HTTP सर्वर लॉन्च किया था, जेनकिन एज ए सर्विस सब यूज करते हैं ना सर, उसमें एग्जीक्यूट सेल नहीं होता है, अगर वर्ड फाइल से अगर करते तो वो होता है, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, आपने एग्जीक्यूट शेल किया रहेगा तो देखो पहले आपने वो किस यूजर से इंस्टॉल किया है, और फिर देखो क्यों नहीं हो रहा है, सुडो लगाओ. ओके. ऐसा कुछ नहीं होता सर, सर्विस में चलता है या उसमें चलेगा वर्ड? कुछ भी नहीं, दोनों सेम है. क्या? दोनों सेम? दोनों सेम है. ठीक है. एक सिर्फ आपका इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी चेंज होता है व्हेन यू इंस्टॉल इट एज अ सर्विस. यस. हाँ, और टॉमकैट इंस्टॉलेशन में आपका इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी चेंज सेम है, अलग है, बाकी सब कुछ सेम है. ओके. नाउ टेल मी व्हाट इज OpenJDK? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय OpenJDK? जावा वर्जन. जावा जावा डेवलपमेंट किट. क्या होता है जावा डेवलपमेंट किट? सर ओपन मींस फ्री टू फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री है. एक तो ओरेकल का जावा आता है जो पेड रहता है, और ये OpenJDK वो क्या रहता है? फ्री रहता है. इट्स अ फ्री वर्जन ऑफ जावा व्हिच इज अवेलेबल, राइट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैचिंग? पैचिंग क्या होता है यार? updating versions. Updating the versions. What version? आपके कर्नल और सॉफ्टवेयर के वर्जन को अपडेट करने को पैचिंग बोलते हैं. पैचिंग कैसे की जाती है लिनक्स में? हाउ डू वी डू पैचिंग इन लिनक्स? यम अपडेट. ठीक है, यम अपडेट से हम क्या करते हैं लिनक्स में? पैचिंग करते हैं. ठीक है. देखो गाइस, आपको पता तो है, मल्टीपल लोग, आप जितने आप एक 10 लोग बोले हो तो 10 लोगों को तो पता है, पर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता है, या फिर बाद में इसलिए मैंने छोड़ दिया वो पूछना. पर थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह प्रैक्टिस करो. मॉक देना इसीलिए इंपॉर्टेंट है. यस. हेलो. सर मुझे 2 डाउट थे, मैं अभी पूछ सकता हूँ? बोलो. ओके. जैसे अभी नितिन ने एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि उसके पास 10 इंस्टेंसेस है एंड एक में मालवेयर अटैक हुआ है. सो जैसे आपने बोला कि मालवेयर अटैक होता नहीं है, दैट्स फाइन, बट अगर किसी अननोन एक्टिविटी, मतलब किसी अननोन ने एक्सेस करने की कोशिश की है, अननोन पर्सन ने, तो वो हमको बाय यूजिंग व्हिच सर्विस वी कैन आइडेंटिफाई? वाह आशीष पवार, किती सोपा प्रश्न विचारलाय. गाइस बताओ. CloudTrail.
जब एक्सेस होगा आईपी से होगा, वेरी गुड। वीपीसी फ्लो लॉग से पता चलेगा ना इनकमिंग ट्रैफिक कौन सा है। हेलो, ओके, कौन से आईपी से इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है, वो कहाँ से पता चलेगा आपको? फ्लो लॉग। यस, किससे पता चलेगा? आपके नेटवर्क में कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है? वीपीसी फ्लो लॉग। वीपीसी फ्लो लॉग से। क्लाउड ट्रेल से क्या पता चलेगा? आपके एडब्ल्यूएस की सर्विस एक्टिविटी, आपके एडब्ल्यूएस में क्या एक्टिविटी हो रही है वो पता चलेगा ना। यस सर। लेकिन क्लाउड ट्रेल में ये पता चलेगा अपने को कि किस आईपी किसने से किया, किसने पता चलेगा, वो फ्लो लॉग में पता चलेगा ना, किस यूजर ने किया है उसमें वो कैसे पता चलेगा? वो तो क्लाउड ट्रेल बताएगा। और फ्लो लॉग आपको क्या बताएगा? किस आईपी से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है। यस सर। सर लेकिन मल्टीपल आईपीज रिक्वेस्टेड अब वो उसको फिल्टर लगाना पड़ता है, उसके लिए अलग से टीम होती है नेटवर्किंग की। वही सर, मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर मतलब मुझे अभी एक्सप्लेन करने में आ रहा है, मैं, आशीष, संदीप, हम एट अ टाइम 3-4 लोग एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो 3-4 लोगों का आईपी डिफरेंट रहेगा, ठीक है, तो उसमें कुछ तो मैं छेड़खानी कर रहा हूँ उसमें। सबसे पहले आप डायरेक्टली एक्सेस तो कर नहीं सकते, आपको चाहिए वीपीएन। यस सर, वीपीएन एक्सेस ही लगेगा आपको। विदाउट वीपीएन एक्सेस यू कैन नॉट एक्सेस। और रहता है कंपनी में एलडैप सिंक, आपको वहां की जो भी आप अगर एक्सेस भी करते हो आपका एलडैप एक्सेस ट्रैक होता है, तो आप कुछ भी करो वो सब कुछ समझ में आता है। अच्छा। आपको क्या लगता है सिर्फ एडब्ल्यूएस वहां पे नहीं रहता, मल्टीपल थर्ड पार्टी टूल्स वहां पे रहते हैं जो सब कुछ ट्रैक करते हैं। ओके सर। फायरवॉल इज देयर आल्सो। सब फायरवॉल वगैरह सब होता है। आप चाहो आप सब कुछ डिलीट करके जाओगे तो भी पकड़ में आ जाओगे, समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि आपका पूरा एलडैप सिंक होता है, आपकी जो एक्टिव डायरेक्टरी वो सब सिंक होती है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके लिए अलग से टीम्स होते हैं। ओके सर। या ओके देयर गाइस, सी यू टुमारो। कल विल मीट टुमारो विद क्वेश्चन है सर। मैवन में सिर्फ आपको लाइफ साइकिल पूछेंगे मैवन की, pom.xml क्या होता है, डिपेंडेंसी क्या होती है। और टॉमकैट पे सर? टॉमकैट तो सर्वर है, उसका ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं। डिप्लॉयमेंट वो डॉकर पे पूछेंगे। अरे मॉक होगा ना, मॉक में आपको पता चलेगा। सर ऐका ना, एकदा फक्त सेल्फ इंट्रोडक्शन थोडं सांगा ना तुमचा डेमो। तुमचं सेल्फ इंट्रोडक्शनचं मी तुम्हाला नेक्स्ट वीक घेणार आहे। ओके, नेक्स्ट वीक आपका जब मॉक होगा ना 1 by 1 लूंगा मैं, ठीक है? सर कंपनीमध्ये मल्टी ब्रांच पाइपलाइन यूज होतात की नॉर्मल पाइपलाइन यूज होतात? ते सगळं डिपेंड करतं काय प्रोजेक्ट आहे। जर गिटचा कोड कंपाइल करायचं आहे तर मल्टी ब्रांच, जर नॉर्मल डे टू डे डिप्लॉयमेंट ऍक्टिव्हिटीज आहे तर साधी पाइपलाइन। ओके सर। ओके देन, सी यू टुमारो आणि गाइस। सर जर जॉबचं विचारलं तर कसं सांगायचंय सर, म्हणजे तुम्ही किती जॉबवर मॉनिटरिंग केली वगैरेला? जॉबवर असे सगळेच जॉबवर आपण बघतो। मॉनिटरिंग म्हणजे काय करतो ते आपण क्रिएट करतो जॉब, मॉनिटरिंग नाही करत आपण। आपण प्रत्येक जॉब तर आपण नाही क्रिएट करत ना सर, म्हणजे टीम राहते ना, टीम असते, पण तुमच्याकडे एन्व्हायरमेंट वगैरे असतात ना, आणि ऑलरेडी सगळे जॉब्स बनवलेले असतात, ते फक्त तुम्ही रन करता। कधी कधी मग काय इश्यू आला तर त्याला तुम्ही रिझॉल्व्ह करता त्या जॉब मध्ये, का फ्लू हाटलं परत रीरन करायचंय ते तुम्ही तेच विचारतोय सर। म्हणजे त्यांनी विचारलं की तुम्ही किती क्रिएट केले पर्सनली, तर सांगायचं केले आमच्याकडे 15 एन्व्हायरमेंट आहेत, 15 एन्व्हायरमेंटचे मी जॉब्स क्रिएट केले वेगळे वेगळे, डिप्लॉयमेंटचे, रनिंग टेस्ट केसेस सगळं केले म्हणायचं। नाही तर ऑलरेडी होते कशाला सांगते, ऑलरेडी नव्हते काही, मी इम्प्लिमेंट केले जेनकिन्स। येस, मी सगळे जॉब बनवलेत। 3 लोक आहे आमच्या टीम मध्ये, तिघांनी मिळून बनवलेत, तर मी सगळे क्यूए एन्व्हायरमेंटचे आणि डेव एन्व्हायरमेंटचे मी जॉब बनवलेत। बाकी लोकांनी युएटी एन्व्हायरमेंट जॉब बनवलेत। येस सर। आणखी एक मी काय म्हणतोय की आता तुमच्या जसं तुम्ही बोलला ना की म्हणजे सेंटेन्स फॉर्मेशन करता येत नाही आम्हाला वगैरे, हा ही गोष्ट खरी आहे, तर माझी एक रिक्वेस्ट असते होती, तुमचे पर्सनली जर काही तसे नोट्स असतील की म्हणजे तुमचे सेंटेन्स फॉर्मेशन जे आहेत ते सिम्पल वे मध्ये आहेत, तर तसे जर काय असतील तर सर तुम्ही प्लीज शेअर करा। ऑलरेडी पीपीटी दिलेत ना, पीपीटी मीच लिहिली आहे ती। तुमचीच आहे का सर? सिंपल, हो, माझ्याच लँग्वेज मध्ये मी सोडं पाठ सगळं नाही, बऱ्यापैकी माझ्याच लँग्वेज मध्ये लिहिले मी। ओके सर। ओके पीपीटी तर मॉक दिलं तरच कळणार आहे सगळं, मॉक द्या।
सर आणखीन एक रिक्वेस्ट होती. आता उद्या आपण जेनकिन्सच लेक्चर आहे ना सर? आयडीएस सर जेनकिन्स एक एक्स्ट्रा लेक्चर घेऊन तुम्ही आणखीन एकदा रिव्ह्यू देऊ शकता का सर? नाही, आता नंतर असते सगळं प्रॅक्टिकलच्या वेळेस, प्रोजेक्टच्या वेळेस जेनकिन्स होणार. ओके सर, ओके. आता डायरेक्ट आयडीएस. जेव्हा मी तेच सांगितलं, जेव्हा शिकवतो तेव्हाच विचारायचं की काय चालू है. सर ते कधी कधी जिस दिन टॉपिक हुआ है उस दिन ही आपको पूछना है. सर ज्यावेळेस आपण ती ग्रुवी स्क्रिप्ट लिहितो कधी कधी ते सिंटॅक्स मध्ये एरर झालाय. तिथे एरर तर फाइंड आउट होत नाही, म्हणजे दिसत नाही, बट रन केल्यानंतर तो एरर दाखवतो. तर मी जे स्क्रिप्ट लिहिले तुम्हाला पाठवलेत ना याच्यावर गिटहबवर, येस सर. ते तसे तसे एक्झिक्यूट करायचे. सिम्पल आहे, त्यामुळे सगळे सिंटॅक्स लिहिलेले. ठीक आहे, सेम तोच सिंटॅक्स आहे, फक्त आतला कोड बदलतोय. ते तुम्हाला फिगर आउट करा. तुम्हाला स्वतःचं लॉजिक कसं कळणार? येस सर. ती प्रॅक्टिस देखो, करावं लागेल का? आपने म्हणजे एक तुमची जी स्क्रिप्ट आहे थोडक्यात ते जे कोड्स आहेत ते प्रत्येक वेळी लिहून रन करून ते प्रॅक्टिस केल्यानंतर ते सरावानी होऊन जाईल का मग ते? ऑब्व्हियसली. मग तुम्ही काय एक्सपेक्ट करताय? एकदा वाचलं तुम्हाला येऊन जाईल? नाही सर, वाचायचं असं म्हणत नाही. जसं तुम्ही बोलला की लॉजिक डेव्हलप व्हायला पाहिजे, त्यासाठी काय करावं लागेल असं? मग सारखं सारखं प्रॅक्टिस केल्याशिवाय लॉजिक कसं डेव्हलप होणार? अच्छा सर. आता मी जेव्हा समजा लिनक्स शेल स्क्रिप्ट लिहायला लावली तर तुम्ही काय लिहिणार आहे शेल स्क्रिप्ट? येस येस. तर जेव्हापर्यंत तुम्हाला कुठलं कमांड कधी युज करायचं कळत नाही, ते कधी कळणार? तेव्हा तुम्ही मॅक्झिमम प्रॅक्टिस करणार. ओके ओके ओके. सारखं सारखं लिहिणार, तेव्हा तुम्हाला कळणार हा कमांड मी इथे युज करू शकतो. ओके. राईट? तेव्हा कमांड तिथे युज तेव्हाच तर कळणार आहे तुम्हाला की कधी युज करू शकता तो कमांड. बाकी सर तुम्ही प्रॅक्टिस कराल. जेनकिन्स शिकवले ते समजलं सर, ते तुम्हाला बोललो नाही का थोडंसं फास्ट झालं होतं त्यामुळे तेवढंच पाईपलाईन. बघा आता तर फास्टच होणार आहे. सगळ्यात पहिली गोष्ट हे बघा, असं नाही की आता एक एक गोष्ट सांगणार. लिनक्स मध्ये जे कमांड एक्झिक्यूट झाले ते झालेत, ते परत रिपीट होत नाहीत. जेनकिन्स मध्ये मी 3 क्लिक केले, ते क्लीन क्लिक झाले, त्याच्या पुढचं जे क्लिक आहे तेच एक्सप्लेन करणार मी. तसंच असतं, कुठेही जा तुम्ही. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम नो प्रॉब्लेम. ठीक है, यू हैव टू रिवाइज ऑन अ डेली बेसिस, वही ऑप्शन है. यस सर यस. ठीक है, यू हैव टू रिवाइज ऑन डेली बेसिस. आप मॉक ही नहीं कर रहे इधर तो कैसे होगा? और ऐसा लग रहा है कि फास्ट हो, ठीक है और स्लो ले लेंगे, पर स्पीड तो पकड़नी पड़ेगी ना. आप कितने दिन फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलाओगे? सेकंड गियर डालते हो कि नहीं? थर्ड गियर डालते हो की नाही? सर काय होतंय माहितीये का, तो स्लो घ्या असं माझी रिक्वेस्ट नाही आहे. तुम्ही तुमच्या स्पीड पकडा, त्याच्याबद्दल इश्यू नाही आहे. काय होतं तुम्ही पटपट क्लिक करताय ना, ते कुठं क्लिक केलं ते लक्षात येत नाही. तेवढा ते क्लिक जो करताय जे प्रॅक्टिकलच्या टाइम मध्ये तोच तेवढा फास्ट आहे. बाकी तुमचं टीचिंग स्लो आहे, सगळ्या गोष्टी तुम्ही समजावून सांगताय, कन्सेप्ट क्लिअर होतात, नो प्रॉब्लेम. फक्त प्रॅक्टिकलच्या वेळी दहाव्या विचारतो कळालं का कळालं तेव्हा तर काय बोलत नाही. क्लिक कुठं होतंय हे कळेपर्यंत ते पेज सर काय असतं माहितीये, तुम्हीच बोलला होता की तुम्ही असता फ्लो मध्ये, त्यात मलाही डिस्टर्ब करायला तुम्हाला आवडत नाही. मग ते तुम्ही जे पुढचं जे त्याला अटॅच पुढे सांगत असताना काही कन्सेप्ट, मग त्यात तुमचं पण हे होतं, म्हणून आम्ही त्यावेळी नाही बोलत काही, असं होतंय. तरी पण एकदा विचारतो कळालं का कळालं, सगळे म्हणतात कळालंय. हो हो हो. बरोबर घाबरतात पण तुम्ही सगळे तुम्हाला. वा, घाबरायचं काय मध्येच करत नाही. ठीक है, करेंगे और स्लो स्पीड. हाँ जितेंद्र सोनारे क्या बोल रहे थे? तेच सर की तुम्ही म्हणजे आता क्लिक केलेलं असतं ना, ते कुठं क्लिक केलं हे कळेपर्यंत ते पेज पुढे गेलेलं असतं. इतकं समजत नाही सर, बाकी सगळं समजतं. त्यामुळे थोडासा इश्यू येतो बस. ओके ठीक है. सर ये लीव कब लेना है? नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक? एक मिनट सितंबर. एक सेकेंड. आरडीएस ये खत्म हो जाएगा, फिर डॉकर. हाँ नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक, नहीं तो सेकेंड वीक में ले लो. 10th वाला वीक, नहीं तो ये फर्स्ट वीक में 10th वाला भी ले सकते हो, तब आपका एनसिबल चलेगा. ओके, तो 3 और 14 के बीच में आप ले सकते हो. एक काम करो, 10th को ले लो, 10th वाले पे, क्योंकि तब डॉकर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है. ओके. हेलो. ओके सर. क्या, क्योंकि तब डॉकर चालू होने वाला है. म्हणजे 10 ऑक्टोबरच्या पुढे का एक वीक? ते तुमचं पर्सनल डिसिजन आहे, माझं रेकमेंडेशन असेल. ओके सर, ओके नो प्रॉब्लेम. एक सिलेबस कब तक खत्म होगा सर? तभी खत्म हो जाएगा. तर दिवाळीमुळे काय इम्पॅक्ट होतो का कॉल वरती? हो होतो ना.
कारण की सुट्टीचा त्यांना weekend आहे तो. हा सुट्टी येतात ना कोण त्यावेळेस. कोण डिझाईन पण नाही करत त्या पिरियड मध्ये, तर थोडं थंडच असतं ते. तो पिरियड दिवाळीचा. कधी दिवाळी? ऑक्टोबर नोव्हेंबर थोडं कमी 24th of होतं. October. लास्ट वीक 25 ऑक्टोबरला मेन कारण की दिवाळी. आतापर्यंत एक पण बॅच आमची या पिरियड मध्ये पास आउट नाही झाली ना. तर बहुतेक आणखी एक तर विचार मग यांचा बोलता येईल का तो टाइम भेटेल स्टडीसाठी म्हणजे दिवाळीचा पण म्हणजे तेवढा एक तुम्ही 6 अपलोड करा महिन्यात रेझ्युमे. अपलोड तर करा रेझ्युमे. सर आणखीन एकच विचारायचं होतं, लास्ट क्वेश्चन असेल माझा. आता सध्या सर मार्केटमध्ये या इंडस्ट्री लाईनला की ओपनिंग्स डेव्हलपसाठी सर कशा आहेत, म्हणजे ऍज कम्पेअर टू टेस्टिंग बाकी डेव्हलपमेंट? तसं सांगता येत नाही, पण आहे बऱ्यापैकी आता सध्या तरी. डिमांड आहे का? डेव्हऑप्सलाच आहे आता. टेस्टिंगला पण नाही एवढी डिमांड सध्या तरी. अच्छा अच्छा, कारण तुम्ही ऑन इंडस्ट्री आहात त्यामुळे म्हटलं तुम्हाला जास्त माहिती असणार ना. हो असतात, भरपूर ओपनिंग आहेत सध्या डेव्हऑप्ससाठी, पण टेस्टिंग साठी थोडे कमी झाले आहेत ओपनिंग्स. ओके डेव्हऑप्सला आहेत ओपनिंग्स, पण कसं असतं डेव्हऑप्सचं, जसं टेस्टिंगला कसं असतं, एक साथ 300-400 लोक घेतात. एका टीम मध्ये 20 टेस्टिंगची लोक असतील तर 2च डेव्हऑप्सचे असतात. बरोबर सर. कॉम्पिटिशन तेवढंच जास्त आहे मार्केटमध्ये डेव्हऑप्स साठी. पण आहे की 20 पैकी 10 लोक असेच काढून टाकतात टेस्टिंगचे, पण 2 लोकांचा जॉब नाही जात. तुम्ही बघा जे पण काढलेले असतात सगळे टेस्टिंग वाले असतात जास्त करून. मॅन्युअल ऑटोमेशन टेस्टिंग कुठल्याही कंपनीमध्ये. आता मध्ये कॉग्निनी काढले वगैरे 50,000 एम्प्लॉय काढले, तर मोस्टली सगळे टेस्टरच होते. पण असे डेव्हऑप्स वाले कमीच, असे कमी मी तर कधी बघितलं नाही काढले. कम्प्लीट डिपेंडन्सी असते आणि प्रोजेक्ट जरी मेंटेनन्स मोड मध्ये गेला तरी डेव्हऑप्सच्या लोकांना काढत नाही, ते तिथं पाहिजेच मेंटेन करायला. हा एक ऍडव्हान्टेज आहे क्लाउड आणि डेव्हऑप्सचा. ओके, थँक्यू सर. या ओके बाय. Thank you, sir. थँक्यू सर. Thank you, sir. थँक्यू सर. या गुड नाईट बाय. गुड नाईट. थँक्यू सर. Bye, sir.